Hello everyone, I am Deepika and today we are going to study the canonization which has been written by the metaphysical poet John Donne. I have already made a video wherein I've explained the term metaphysical and I've talked about metaphysical poets and their work. So if you've not seen it, you can click on top right side of this video, you'll find the link there. This poem was first published in 1633. यहाँ पे poet is talking about being canonized into kind of sainthood. अब canonization का मतलब ही होता है जब आपको official admission मिल जाता है किसी church में into sainthood. यहाँ पे sainthood के साथ साथ हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जॉन डन यहाँ पे जो pair of lovers की बात कर रहे हैं. The poem itself functions as a canonization of the pair of lovers कि उनको canonize किया जाएगा यहाँ पे as pair of lovers. So which is why the canonization, and here we're talking about lovers, not saints. So let's get started. I'm going to explain the poetry to you line by line. For God's sake, hold your tongue and let me love. So here the speaker is actually addressing someone. ये जो poetry का poet है वो किसी को address कर रहा है and he's asking that person, why can't you be quiet? Just be quiet and let me love. मतलब उसको प्यार करना है speaker को of this poetry and he's asking that addressee, what is your problem with that? अगर तुम्हें मजाक उड़ाना ही है or chide my palsy or my got, my 5 grey hairs or ruin fortune flawed. So he's saying अगर तुम्हें मजाक उड़ाना ही है तो तुम मेरे पैरालिसिस का मजाक उड़ाओ, तो मेरी बीमारी का मजाक उड़ाओ जिस वजह से मेरी बॉडी कोऑर्डिनेशन में नहीं है, मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन में नहीं कर पाता हूँ, या फिर मेरे ग्रे हेयर्स जो है 5 उनका उड़ाओ, या फिर मेरा फॉर्च्यून जो इतना ब्राइट नहीं है, जो मेरे पास इतना ज्यादा पैसा वेल्थ नहीं है, तुम उसका उड़ाओ, बट डोंट मेक फन ऑफ मी. ये इस टेंडेंसी का मजाक मत उड़ाओ that I love to fall in love. With wealth your state, your mind with arts improve. Now very angrily the speaker is saying अपने एड्रेसी को कि तुम अपने आप पे फोकस क्यों नहीं करते हो. With wealth your state, that you should improve your own state and wealth, your well-being, or you should improve your mind with art. Take you a course, get you a place. That take you a course as in do something for yourself, take some classes or some course, get a place for yourself there. Or it can also refer to getting a place in court. Observe his honor or his grace. So now मैंने जैसे अभी बोला कि getting a place in court. So court में nobility होती है, तो this speaker is saying उस एड्रेसी को कि तुम जो नोबल लोग हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनके ऑनर को नोटिस करो, उनके ग्रेस को नोटिस करो, उनके बिहेवियर को नोटिस करो. और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, कि जो किंग का रियल फेस है कोर्ट में और जो उसका स्टैम्प्ड फेस प्रॉब्ली स्टैम्प्ड ऑन कॉइन और एनीथिंग, जो वो फेस है उसको ऑब्जर्व करो. कॉन्टेम्पलेट, सोचो. व्हाट यू विल अप्रूव, कि इन सब चीजों में से तुम्हें क्या चाहिए, तुम किसका अप्रूव करते हो, तुम किसके हु आर यू इन सपोर्ट इन, व्हाट डू यू रियली वांट आउट ऑफ ऑल दिस. सो यू विल लेट मी लव, कि इन सब चीजों में तुम बिजी हो जाओ और तुम मुझे क्रिटिसाइज करना छोड़ो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टू फॉल इन लव, टू बी इन लव. यू आर नोबडी टू कॉमेंट ऑन दिस. सो ही इज सजेस्टिंग द ड्रेसी कि तुम ये सब कुछ ध्यान दो अपने आप पे, अपनी खुद की वेल बीइंग पे, अपने खुद के माइंड पे, अपनी खुद की वेल्थ पे, योर ओन पोजिशन, इन सब पे ध्यान दो रादर देन क्रिटिसाइजिंग मी और मेरे आइडिया को लव के. Alas, 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 who's injured by my love? So now the speaker is, very rhetorically asking this question. रेट्रिकल का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो या तो आंसर अंडरलाइन है या आप खुद ही उसको आंसर कर रहे हो. सो बड़ी रेट्रिकली स्पीकर पूछ रहा है, पोएट पूछ रहा है इस पोइट्री का कि कौन किसको इंजरी हुई है मेरे प्यार से, हु इज गॉटन अफेक्टेड, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है. What merchant ship have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed this ground? So he's saying कि कौन से मर्चेंट के शिप को ड्राउन कर दिया है, डुबा दिया है मेरे इन आंसुओं ने या फिर मेरे इस दुख ने. Who says my tears have overflowed his ground? कि कहाँ बाढ़ आ गया, ओवर फ्लडेड लैंड हो गई है बिकॉज ऑफ माई टीयर्स. एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पेट्रियार्क एंड पोइट्री जो होती थी उसका यहाँ पे क्रिटिसिज्म है ये, क्योंकि वहां पे इन सब लाइन्स का यूज हुआ करता था, टीयर्स, और किस तरीके से हाइपरबली बेसिकली हम बोल सकते हैं यूज किया जाता था टू शो द आइडिया ऑफ लव. एंड ही इज ऑल्सो सेइंग व्हेन डिड माय कोल्स ऑफ फॉरवर्ड रिमूव स्प्रिंग रिमूव, कि इतने किस कौन सा ऐसा हो गया है कि मेरी कोल्ड की वजह से जो स्प्रिंग है वो इतनी कोल्ड नहीं है.
And when did the heats which my veins fill add one more to the plague bill? So he's saying जो मेरी veins में इतनी heat है उसकी वजह से किसको इतनी प्रॉब्लम हो गया या फिर कौन मर गया है कि जिसका नाम उस लिस्ट में आ गया है जो जो लोग मरे थे बिकॉज ऑफ प्लेग. सो बेसिकली ही सेइंग कि मेरा आइडिया ऑफ लव इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं हुआ है, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं कोई फ्लड नहीं आ गया है, किसी की शिप कोई डूब नहीं गई है, किसी का कोई मर नहीं गया है बिकॉज ऑफ द हीट्स इन हिज वेन बिकॉज ऑफ प्लेग और समथिंग. And he's also saying that soldiers find wars and lawyers find out still litigious men, which quarrels move though she and I do love. So he's saying अभी भी सब कुछ normally चल रहा है, soldiers अभी भी war में जा रहे हैं, they are still participating in the war, और lawyers can still find people litigious men regardless of the emotions of the speaker and his lover. कि पूरी दुनिया में सारी चीजें वैसी ही चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी. Because of him and his lover nothing has gotten affected. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है या फिर उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी भी तरीके का. तो इतनी प्रॉब्लम क्यों है एड्रेसी को उसके आइडिया से या फिर उसके लवर से और उससे. Call us what you will, we are made such by love. So he's saying जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो हमें, हम इस तरीके के बने हुए हैं because of love. So now the speaker is referring to his beloved and himself. और बोल रहा है कि हम जैसे भी हैं it's because we are in love because of love. तो तुम हमें कुछ भी बोल सकते हो. Call her one, me another fly. And he's also saying to the addressee अगर तुम चाहते हो you can call her one insect and me another. Fly यहाँ पे refers to insect. We are tappers to tappers here refers to candle. At our own cost die. जिस तरीके से एक कैंडल अपने आप को जलाती है उसमें से ताकि उजाला आ सके, उसी तरीके से ये पोएट बोल रहा है, स्पीकर इज सेइंग कि जो हम दोनों हैं मी एंड माई बिलवड, हम दोनों एक दूसरे के कॉस्ट पे मरते हैं. मतलब वी आर डाइंग एट वी आर वॉट एवर वी आर डूइंग इट एट आवर ओन कॉस्ट. हम किसी और के कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं. And we in us find the eagle and the dove. और हम एक दूसरे को ईगल और डव की तरह देखते हैं. ईगल refers to masculine image and here dove refers to feminine image. कि किस तरीके से lover has been referred to eagle and the beloved has been referred to as dove. The phoenix riddle has more wit by us. We two being one are it, and to one neutral thing both sexes fit. Phoenix riddle को यहाँ पे रेफर किया गया है. पहले तो phoenix क्या था? Phoenix एक myth है, एक ancient bird थी जिसको बोला जाता है कि जो उसके predecessor थे वो जब मरते थे तो एक उसमें से reborn होता था. Phoenix एक और bird reborn होती, तो एक cycle थी, एक मरता था दूसरा born होता था, वहीं पे एक मरता था दूसरा born होता था. तो वो regenerating cycle थी कि वो कभी dead ही नहीं होता था, कभी मरता ही नहीं था. तो यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि ये जो रिडल है ये हम दोनों पे फिट होती है, दोनों के दोनों न्यूट्रल सेक्सेस, मतलब ये जो फिनिक्स का पूरा पॉइंट है दोनों के सेक्सेस पे फिट होता है कि हम दोनों मरते हैं फिर से जिंदा होते हैं, फिर से मरते हैं फिर से जिंदा होते हैं. बस डिफरेंस इतना है कि हम दोनों के केस में इट्स द लव which kill us and which resurrects us. मतलब हमें जो मारता है और जो हमें फिर से जिंदा करता है it's love. We die and rise the same and prove mysteriously by this love. कि जो love है ये mysteriously हमें फिर से मारता है जिंदा करता है, मारता है जिंदा करता है. तो कहाँ किस तरीके से जो फिनिक्स की रिडल है यहाँ पे एक एनालॉजी की तरह यूज की है लवर्स के लव को दिखाने के लिए. We can die by it if not live by love. So now a poet is saying, a speaker is saying, अगर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं by love, तो हम मर जाएंगे for love by love. And if unfit for tombs and hearse, so now unfit for tombs and hearse. Hearse का मतलब होता है कि जो आपके ट्रैवलिंग कार होती है या फिर बस होती है जिसमें कॉफिन्स को लेके जाते हैं फॉर फ्यूनरल, और वो बोल रहे हैं टूम्स जहां पे दफनाया जाता है, तो बोल रहे हैं अगर हम अनफिट हैं टूम्स दफनाने के लिए और ऐसे कॉफिन में ले जाने के लिए, तो आर लेजेंड्स बी, लेजेंड हियर रेफर्स टू देयर स्टोरी, देयर लव स्टोरी. इट विल बी फिट फॉर वर्स, कि वर्स मीन्स पोएट्री. तो नाउ इन तीनों लाइन का मतलब ये है कि किस तरीके से एटमोस्ट इंपॉर्टेंट दी जा रही है यहाँ पे लव को, और किस तरीके से आइडिया दिया जा रहा है कि जो लव है अगर वो उसके साथ जी नहीं सकते तो वो उसके लिए मर जाएंगे, और अगर उनकी स्टोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है लोगों के हिसाब से कि उनको टूम मिल सके या फिर एक हर्स मिल सके, तो उनकी स्टोरी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल तो है कि उनको फिट कर दिया जा सकता है परफेक्टली पोएट्री में.
And if no piece of chronicle we prove will build in sonnet's pretty room. So he's saying कि अगर किसी स्टोरी में हमें इतने अच्छे से एक अच्छा पीस नहीं मिल पाएगा या फिर हम इतने पॉपुलर या सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो कम से कम एक सोनेट में तो उनको एक प्रिटी रूम मिल जाएगा. एज इन द सोनेट their story is going to fit in beautifully in a sonnet. Their story is going to become very popular in the form of poetry in sonnets, as well as well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs. So it's saying कि जिस तरीके से एक urn के अंदर, मतलब जिसमें आप ashes रखते हैं, एक बर्तन जो होता है, उस यूटेंसिल के अंदर, एक अर्न के अंदर उतनी इज्जत होती है, जो एशेस होती हैं, जितनी कि अगर आप टूम में हाफ एकड़, टूम जो इतनी सारी जगह लेता है, इतनी बड़ी टूम में किसी को जगह मिले. सो बेसिकली उन दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही है. चाहे एक इंसान को टूम में दफनाया जाए, चाहे उसके हाथ में एक अर्न जो एक हाथ में फिट हो जाता है, उसके अंदर एशेस हो. बेसिकली कि किस तरीके से अगर एक उनकी जो स्टोरी है उसको कहीं बड़ी जगह नहीं मिल पाएगा, जगह उनकी स्टोरी वहां नहीं लिखी जाएगी, तो एक छोटी सी पोइट्री, एक सोनेट में भी उनकी स्टोरी उतनी ही पावरफुल होगी. सो यहाँ पे एक एनालॉजी क्रिएट कर दी गई है टूम्स और ऑन प्लस इनकी जो लव स्टोरी दिखाई गई है वर्स एंड प्रोस के बीच में. एंड बाय दीज हिम्स ऑल शेल अप्रूव us canonized for love. So वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से जब वो सोनेट्स में या पोइट्री में इनकी स्टोरी लिखी जाएगी, उन लोगों को अप्रूव किया जाएगा, मतलब उन लोगों को एडमिट कर दिया जाएगा इन सेंटहुड ऑफ लव. मतलब कैनोनाइजेशन के, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एडमिशन जब होता है एक चर्च में किसी को ऑफिशियली सेंटहुड में, तो यहाँ पे जो लव के एज लवर्स, एज सेंट ऑफ लवर्स, इनका एडमिशन कर दिया जाएगा, इनको कैनोनाइज कर दिया जाएगा, बिकॉज इनकी स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल होगी उस फॉर्म में, वर्स फॉर्म में, कि दे विल गेट अप्रूव्ड एज सेंट्स ऑफ लव एंड thus invoke us. Now जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से पोएट्री पूरा का पूरा एक रोल प्ले कर रही है, जिसमें सेंटहुड ऑफ लवर्स इज हैपनिंग थ्रू दिस पोम, कि इनकी स्टोरी एक पोएट्री में लिखी जाएगी और वो एक हिम होगा. हिम क्या होता है? बेसिकली एक रिलीजियस पोइट्री, और लोग जब उसको पढ़ेंगे इन सेंट्स ऑफ लव की स्टोरी को, तो इनको याद करेंगे, इन्वोक करेंगे और बोलेंगे यू होम रेवरेंट लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज. मतलब रेवरेंट एज इन रिस्पेक्टफुल, प्योर, जो उनका लव था, एक दूसरे को हर्मिटेज बनाया, एक दूसरे को हर्मिट बनाया, कि मतलब एकदम प्योर, ग्राउंड टू अर्थ, एक दूसरे में ही बस खो जाना, ऐसा जो इनका प्यार था. यू टू होम लव वाज पीस, कि तुम्हारे लिए लव क्या था? पीस था, पीसफुल था. लेकिन अब वो क्या बन चुका है? एक रेज बन चुका है, रीजन ऑफ एंगर और कंप्लीट पैशन, डिजायर. Who did the world's soul contract and drove into the glasses of your eyes? कि everybody now is looking up to you, कि तुम्हारा जो प्यार था उसकी तरफ देख रहे हैं, कि how your love, पूरा का पूरा जो world है उसकी तरफ देख रहा है. And so made such mirrors and such spies that they did all you epitomize. मतलब कि तुमने जो तुम्हारा जो प्यार था वो इस तरीके का मिरर बन चुका है कि लोग उसको जब देखते हैं, they think of it and they epitomize it, as in they put it on a very elevated level. सबसे टॉप पे. epitomize का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, elevated state पे रखा जाता है. Courtiers, towns, court, beg from above a pattern of your love. कि countries हो, चाहे towns हो या court हो, सब beg कर रहे हैं, सब बस मांग रहे हैं a pattern of your love. मतलब जिस तरीके से तुम्हारा प्यार था, peaceful, जिस तरीके से तुमने एक दूसरे को hermit मान लिया था, pure, nice love, वैसा pattern of love everybody is asking from above. तो बेसिकली किस तरीके से poet is referring to his story, his love story and his role and his beloved's role, और उनकी जो भी ये एक हिम की तरीके से जो पोइट्री लिखी जाएगी इनके बारे में. सो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पोइट्री समझ आई हो. इफ यू डिड लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with the next video. Thank you for watching. Much love.